Anne Graham Garu. She is called as the best preacher in the family by her father, Billy Graham Garu. And she has got a tremendous impact in the ministry. And she leads the national prayer movement. And also this is an historical time. She has come as a legacy. She has come as to take her inheritance back in India. And we just welcome you, ma'am, that you lead us in prayer. And this nation is going to be transformed in the name of Jesus. With Swachh Bharat and Bangaru Telangana, please give us the direction to pray, how to pray, when to pray, corporate prayer. Let's hold our hands and give her a big round of applause. And welcome, ma'am. Please come. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। It is a great honor and a privilege for me to be here tonight. और आज शाम यहाँ पर रहना मेरे लिए बड़े आदर और सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ा आदर है। There are many people I would like to thank for this privilege. और इस सौभाग्य के लिए मैं यहाँ पर बहुत से लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ। But there are too many for me to name. लेकिन सभी का नाम लेना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। But I would like to name one. लेकिन बस एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहती हूँ। I want to thank MLC Rajeshwar for inviting me. मैं MLC राजेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे न्योता दिया है। And I want to thank him and praise God for his vision for this meeting. मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और इस सभा के लिए, उनके दर्शन के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। मैं सच में अपने दिल से आभारी हूँ। For the leadership that he has given to this state. और इस राज्य में जो लीडरशिप उन्होंने दी है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। For his love for God and his heart for prayer. परमेश्वर के लिए इनका प्रेम और प्रार्थना के लिए इनका जो हृदय है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to bring you greetings from my father, Billy Graham. मेरे पिताजी बिली ग्रैहम की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। He just had his 99th birthday. उन्होंने अभी अपना 99वां जन्मदिन मनाया है। वो 99 साल के हो चुके हैं। When I asked him what was the favorite place he had ever been in all of the world, और जब मैंने उनसे पूछा कि पूरे संसार में जब वो गए तो उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है, he responded quickly, India. और उन्होंने तुरंत मुझे जवाब दिया कि वो तो भारत देश है। My father loves India. मेरे पिताजी भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। And he gives you his greetings and his prayers. और वो अपनी ओर से प्रार्थना और अभिवादन आपके लिए भेजते हैं। And I will tell you that I love India. और मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि मैं भारत देश से बहुत प्रेम करती हूँ। This is my 5th trip to India. भारत देश में ये मेरी 5वीं यात्रा है। I love the country and I love the people. मुझे ये देश बहुत पसंद है और यहाँ के लोग बहुत पसंद हैं। So I am very privileged to be here tonight to share God's word with you. आज शाम आपको परमेश्वर का वचन बताने के लिए ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। Our world needs God's blessing. हमारे संसार को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। The nation of India needs God's blessing. हमारे इस भारत देश को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। This state needs God's blessing. इस राज्य को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। This city needs God's blessing. इस शहर को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। But how do you get God's blessing from heaven to all of these different places? लेकिन स्वर्ग से इन सभी अलग अलग जगह पर हम परमेश्वर की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम वो आशीष कैसे पा सकते हैं? Jesus said, if you ask, you will receive. यीशु ने कहा अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। And he said, if you seek, if you keep asking, you will और उसने receive. कहा कि अगर तुम ढूंढोगे और तुम मांगते रहोगे तो तुम पाओगे। And then if you knock and you keep on praying and asking, God will bless. और अगर आप खटखटाएं और बार बार आप प्रार्थना करते चले जाएं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। As we pray for blessing, we need to persevere in our prayers that God would bless. और जैसे हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना में डटे रहना है कि परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। हमें परमेश्वर आशीष देगा, ये हमें जानना है। There's a wonderful story told in the history books. इतिहास की किताबों में बहुत ही अद्भुत ऐसी कहानी बताई गई है। It took place before the 1st century. और ये तो पहली सदी के पहले की घटना है। And Jerusalem was going through a severe drought. और यरूशलेम तो बहुत ही बड़े सूखे में से होकर जा रहा था।
If they didn't have rain, then a whole generation would be lost. और अगर उस समय वहां पर बारिश नहीं होती तो उस समय की पूरी पीढ़ी नाश हो जाती। So the city elders called for the rainmaker. तो उस समय जो शहर के अगुवे थे उन्होंने बारिश के बनाने वाले को, उस व्यक्ति को बुलाया His name was Honi. और उसका नाम था होनी। And they brought him outside the city of Jerusalem. और उन्होंने उसे यरूशलेम के शहर के बाहर लाया And they said, "We want you to pray for rain." और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम बारिश के लिए प्रार्थना करो। इस तरह से उससे कहा। So Honi took his staff and he drew a circle in the dust. तो होनी ने अपने हाथ में एक लाठी ली और उससे वहां पर जमीन की धूल में उसने एक ऐसा गोल घेरा बनाया। And then he got inside the circle. और फिर वो उस घेरे के अंदर चले जाता है And he fell down on his knee. और वो अपने घुटनों पर आ जाता है And he began to pray. और वो प्रार्थना करने लगता है। And he said, "God, send the rain." और वो प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु बारिश तू भेज, अभी बारिश भेज। And as Honi prayed, there was a light rain that fell. और जब होनी प्रार्थना कर रहा था तो उस समय हल्की सी बारिश हुई। And Honi said, "That's not the kind of rain we need." और होनी ने कहा कि हमें इस तरह की थोड़ी सी बारिश की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतनी ही बारिश नहीं चाहिए। He said, "God, I'm asking for rain to end the drought." और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि तू ऐसी बारिश भेज जिससे ये सूखा जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। इतनी बारिश तू भेज प्रभु। And as he prayed, the rain began to pour in such a way it was flooding the city. और जब उसने प्रार्थना की तो बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि मानो उस शहर में पूरी तरह से बाढ़ के आसार हो गए। And he said, "God, not for that kind of rain." और उसने कहा परमेश्वर इतनी ज्यादा भी बारिश मत भेज। He said, "I'm asking for a downpour that will fill the rivers and the cisterns and the lakes and end the drought." और उसने कहा कि मैं बस इतनी बारिश चाहता हूं जिसके कारण नदियां भर जाएं और जो तालाब है वो भर जाएं और सूखा जो है वो खत्म हो जाए। नदियां और तालाब जो है वो सूखे न रहें लेकिन वो भर जाए, बस इतनी बारिश चाहिए। Honi said, "I'm not going to get out of the circle until you send a rain to end the drought." और उसने कहा जब तक कि सूखा खत्म होने के लिए तू बारिश न भेज दे तब तक मैं इस घेरे से बाहर नहीं निकलूंगा। इस तरह होनी ने परमेश्वर से कहा। And as Honi prayed, the rain began to go into a steady downpour. और जैसे कि होनी प्रार्थना कर रहा था उस समय जो बारिश थी वो स्थिर रूप में बारिश होने लग गई। It was a gentle rain that filled the rivers and the lakes and the cisterns. और ये तो बहुत ही सामान्य सी नदी थी जो तालाब को, नदी को और सारे पानी के चीजों को भर देती है। बस उतनी ही बारिश हुई। And the drought in Jerusalem was ended. और यरूशलेम में जो सूखा पड़ा था वो उस तरह से पूरी तरह खत्म हो गया। And I believe in our world today there's a spiritual drought. और मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमारे संसार में ऐसी आत्मिक सूखा है, आत्मिक रूप में मानो सूखा पड़ा हुआ है। And in this nation and state and city a spiritual drought. हम कह सकते हैं कि इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में आत्मिक रीति से मानो सूखा पड़ा हुआ है। And I believe in my country there's a spiritual drought. और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे देश में भी आत्मिक सूखापन है। And I'm challenging you and myself as Christians to draw a circle. और मैं विश्वासी होने के नाते आपको और मुझे चुनौती देती हूँ कि हम ऐसे ही एक घेरा बना लें। हम प्रार्थना करने के लिए इसी तरह से घेरा बना लें। And not a literal circle, but to focus your mind in prayer and ask for God's blessing. ये तो सच में एक असली ऐसा घेरा गोल बनाना नहीं है, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की आशीष के ऊपर केंद्रित करना है ताकि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके और उसके लिए हम प्रार्थना करते चले जाएं। To persevere in prayer and say, "God, I won't let you go until you bless this state and this nation." और हम प्रार्थना में डटे रहें और परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस देश को, जब तक कि तू इस राज्य को आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। There's a wonderful example of this kind of prayer in the Old Testament in the Bible. और बाइबल में पुराने नियम में ये तो बहुत ही अद्भुत है कि ऐसी प्रार्थनाएं हम बहुत जगह पर देखते हैं। हम ऐसे उदाहरण को देखते हैं। In the book of Daniel, दानियल की किताब में देखिए, Daniel had been a young teenager when he was taken into captivity in Babylon. दानियल को जब बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया उस समय दानियल तो केवल किशोर अवस्था में था, वो तो केवल एक नौजवान व्यक्ति था। And God's people were also taken into captivity. और उस समय परमेश्वर के लोगों को भी वहां पर बंधुआई में ले जाया गया। They were separated from God's place of blessing. वो लोग तो ऐसे थे जिन्हें परमेश्वर की आशीष की उस जगह से दूर कर दिया गया था। And in Daniel chapter 9, he prayed a prayer that moved heaven and changed his nation. और जब दानियल अध्याय 9 में दानियल ने प्रार्थना की तो उसने उस पूरे देश को हिला दिया और उसने बहुत बड़ा बदलाव वहां पर लाया, पूरी तरह से बड़ा बदलाव लाया। Daniel's prayer was a powerful prayer. दानियल की जो प्रार्थना थी वो तो बहुत ही सामर्थी ऐसी प्रार्थना थी।
His prayer moved heaven and it changed his nation. और उसकी प्रार्थना ने पूरे स्वर्ग को हिला दिया और उस देश को ही पूरी तरह से बदल दिया। So I've asked God to teach me how to pray like Daniel prayed. और मैंने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु जैसे दानियल ने प्रार्थना की वैसे प्रार्थना करना मुझे भी सिखा। There are 6 things that God has taught me from this prayer. और इस प्रार्थना से परमेश्वर ने मुझे 6 बातें सिखाई है। The first is that a powerful prayer is one that is compelled. और पहली बात यह है कि सामर्थी प्रार्थना तो वो होती है जो कि विवश कर देती है। ये तो ऐसी सामर्थी प्रार्थना है जो विवश कर देती है। That we pray with a sense of urgency and passion and sincerity. और हम तो बड़ी ईमानदारी से जिज्ञासा के साथ में तीव्रता से प्रार्थना करने लग जाती हैं और हम वहां पर सामर्थी प्रार्थना करने लग जाती हैं। Daniel was compelled because his people had so many problems. दानियल इसलिए यहाँ पर विवश था क्योंकि उसके लोग बहुत सी समस्याओं में से होकर जा रहे थे। वो उनके लिए बहुत ही प्रार्थना करने लग गया। His people were in captivity. उसके लोग तो वहाँ पर बंधुआई में पड़े हुए थे। They were suffering. वो दुख उठा रहे थे। They were being persecuted. वो तो सताए जा रहे थे। And Daniel loved his people. और दानियल इन लोगों से बहुत ही प्यार करता था। And so he was compelled to pray because of the problems his people faced. उसके लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उसके कारण वो तो प्रार्थना करने के लिए विवश हो चुका था और इसलिए वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। But he was also compelled by the promises of God that he read in God's word. साथ साथ में परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी उसके द्वारा भी वो इसके बारे में विवश हो गया था, कायल हो गया था कि वो उनके लिए प्रार्थना करें। He was reading the book of Jeremiah. वो तो यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा था। And Jeremiah quotes God as saying, after 70 years I will set your people free. और यिर्मयाह ने यहाँ पर कहा था कि 70 साल के बाद परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर देगा, वो उन्हें स्वतंत्र करेगा। And God said, I know the plans I have for you. और परमेश्वर ये कहता है कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रखी है उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं उसे समझता हूँ। Plans to give you hope and a future. और ये तो तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं, ऐसे परमेश्वर कहता है। But you must seek me with all of your heart. लेकिन तुम्हें अपने पूरे दिल से मुझे खोजते चली जाना होगा। And so Daniel got on his knees and he claimed that promise. और इसलिए दानियल अपने घुटनों पर आता है और वो इन प्रतिज्ञा का दावा करते चली जाता है। So when we pray, powerful prayer is based on God's word. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सामर्थी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होती है। ये प्रार्थना की सामर्थ होती है। God has taught me when I pray not to pray for what I want. परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं जो चाहती हूँ उसके लिए मुझे प्रार्थना नहीं करते चले जाना है। Not to pray for what I think is best. और मुझे जो लगता है कि ये सबसे उत्तम है केवल उसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। Not just to pray what I hope for. और जिस बात की मैं आशा करती हूँ केवल उसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। But I ask God to give me a promise from His Word, and I pray that promise back to Him. और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे अपने वचन से प्रतिज्ञा दे और उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती हूँ। So when you pray for God's blessing on this state and nation, how do you pray? तो जब हम परमेश्वर की आशीष इस देश पर और इस राज्य पर मांगते हैं तो हमें परमेश्वर से किस तरह से प्रार्थना करते चले जाना चाहिए? Ask God to give you a promise that you can pray back to Him. आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा मांगे कि आप उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाएं। One promise I pray for my country is 2 Chronicles 7:14. एक प्रतिज्ञा जिसकी मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ वो है दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से मैं प्रार्थना करती हूँ। And God says, if my people who are called by my name, और परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जिन्हें मेरे नाम से बुलाया गया है, if Christians like you and me, अगर आपके जैसे और मेरे जैसे विश्वासी लोग, if I would humble myself, अगर मैं अपने आप को नम्र कर देती if I हूँ, would pray, अगर मैं प्रार्थना if करती I हूँ would seek God's face, और परमेश्वर के चेहरे को निहारती हूँ, if I would turn away from my sin, और मैं अपने पापों से अगर फिर जाती हूँ, then God promises He will hear my prayer. तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, He will forgive my sin. वो मेरे पापों को क्षमा कर देगा And He will heal my और land. वो मेरे देश को चंगाई देगा, ज्यों का त्यों कर देगा। And America needs healing. अमेरिका को चंगाई की जरूरत है And I have drawn my circle. और मैंने अपने उस घेरे को बना लिया है। God, I won't let you go until you keep your promise. परमेश्वर जब तक कि तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं कहती हूँ। I believe there are many things in this state, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस राज्य में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं many things in this nation that need healing. और इस देश में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे चंगाई की बहुत जरूरत है। We desperately need the blessing of God. हमें परमेश्वर की आशीष की बहुत बहुत जरूरत है। So when you look at the problems that people face, तो जब आप लोग जिन समस्याओं का सामना करते हैं उसे देखते हैं,
Would you ask God to give you a promise that you can pray back to Him on their behalf? तो क्या आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा मांगते हैं कि वो आपको एक ऐसी प्रतिज्ञा दे जिसके कारण आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं? Listen to the different leaders as they addressed you tonight. और जैसे आज अलग अलग अगुवों ने आपसे बातें की हैं, मैं निश्चय इन सभी लोगों की बातें सुन रही थी। Sometimes I could not understand their words, कई बार मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पाती हूँ, but I could hear their heart. लेकिन मैं उनके दिल को सुन सकती हूँ। शायद उनके शब्दों को समझ नहीं पाती They हूँ। were passionate about what they said जो कुछ भी वो कह रहे थे उसके लिए जिज्ञासा से भरे हुए थे, because they care about you. क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं या आपके लिए चिंता They करते long हैं for God's blessing. और परमेश्वर की आशीष की मनसा रखते चले जाते हैं। So when you pray, do you pray with that same sense of urgency and passion? और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इसी जिज्ञासा के साथ में, इसी तीव्रता के साथ में प्रार्थना करते चले जाएं। Daniel prayed with compulsion. दानियल यहाँ पर पूरी बेताबी के साथ में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता है। And I think sometimes my prayers are weak because I don't have that same sense of compulsion. और कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रार्थना कमजोर है क्योंकि मेरे पास में उसी तरह की बेबसी नहीं है। So I ask God to give me His heart to pray. और इसलिए मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे अपना दिल दे कि मैं उसके अनुसार प्रार्थना करते जाऊं। Would you ask God to do the same for you? आप अपने लिए परमेश्वर से यही करने के लिए कहते चले जाएं। आप परमेश्वर से इसी के लिए विनती करते चले जाएं। The second thing that God taught me from this passage is that we need to be centered in prayer. और दूसरी बात जो परमेश्वर ने इस वचन के भाग से मुझे सिखाया है वो ये है कि हमें प्रार्थना में बिल्कुल केंद्रित होना है। Daniel turned to God in prayer. दानियल प्रार्थना में परमेश्वर के सामने गया। वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में आता है। When you are praying, who do you turn to? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किसकी ओर मुड़ते हैं, किसकी ओर जाते हैं? Our faith in prayer needs to be centered on God and God alone. प्रार्थना में हमारा जो विश्वास है वो केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। When we pray, we need to set our compass of faith. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने विश्वास का कंपास सही कर लेना है, उसे सही दिशा में रखते चले जाना है। And the needle of our faith should always point to God. और हमारे विश्वास की जो सुई है वो तो निश्चय हमेशा परमेश्वर की ओर ही दिखाई जानी चाहिए, वो परमेश्वर की दिशा की ओर हो। Our trust is in God. हमारा जो भरोसा है, जो विश्वास है वो केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। Our trust is not in a government. हमारा भरोसा किसी सरकार पर या किसी शासन पर नहीं है, It is not in our finances. और ना ही वो हमारी धन संपत्ति के ऊपर है, It is not in our job position. और ना ही यह हमारी नौकरी के ओहदे पर या उसकी स्थिति पर है, It is not in all the relationships that we have. और हमारा जो संबंध है उन संबंधों पर भी ये नहीं है। Our trust is in God and God alone. हमारा भरोसा तो केवल परमेश्वर और परमेश्वर पर ही है, और ये केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। God alone is the one who can bless us. केवल परमेश्वर ही है जो हमें आशीष दे सकता है। If God doesn't bless, we won't be blessed. अगर परमेश्वर आशीष न दे तो हम आशीष नहीं पाएंगे, हम आशीष नहीं पा सकते हैं। So Daniel centers his prayer in God. और इसलिए दानियल अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रखकर प्रार्थना करता है। It says he dressed in sackcloth. और वचन कहता है कि उसने टाट ओढ़ ली, इस तरह से वचन बताता है। That reveals that Daniel was desperate for God's blessing. और ये इस बात को प्रकट करता है कि दानियल जो है परमेश्वर की आशीष पाने के लिए बेताब हो चुका था, वो उसकी आशीष के लिए जिज्ञासा से भरा था। He was saying, God, if you don't bless my people, they won't be blessed. और वो ये कह रहा था कि अगर परमेश्वर तू मेरे लोगों को आशीष न दे तो ये आशीष नहीं पाएंगे। इस तरह से परमेश्वर से उसने कहा, If you don't set us free from the enemy, we won't be set free. अगर तू हमें शत्रुओं से न छुड़ाए तो हम निश्चय ही आजाद नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इस तरह से उसने परमेश्वर से कहा, उसने इस तरह से If विनती you don't की। restore us in a right relationship with God, we're not going to be restored. अगर हम परमेश्वर के साथ में सही संबंध में न आए तो हम निश्चय उसके साथ में फिर से नहीं जुड़ सकते हैं। Oh God, we're desperate for you. ओ परमेश्वर, हम तो तेरे लिए बहुत ही बेताब हो चुके हैं। He's dressed in sackcloth. और दानियल शोक करने के लिए टाट ओढ़ कर बैठ जाता है। And then it said he smeared himself with ashes. और बाद में ये कहता है कि उसने खुद के ऊपर में राख ओढ़ ली, That showed his humility. जो उसकी नम्रता को यहाँ पर प्रकट करते चली जाता है। He knew if God answered his prayer and blessed, it wasn't because Daniel was such a great man. वो जानता था परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीष देगा, ये इसलिए नहीं क्योंकि दानियल बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, It's because God is a gracious God and he loves to bless. और ये तो बस इसलिए कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो आशीष देना बहुत ही पसंद करता है, उसे ये बहुत ही पसंद आता है। Daniel approached God with humility. दानियल बहुत ही नम्रता के साथ में परमेश्वर के सामने आता है।
Jesus said in John chapter 15, without me, you can do nothing. यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उस तरह से यीशु ने बताया है। So we come to God in Jesus' name, humbly asking for His mercy and His grace. और इसलिए हम परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम में आते हैं। बड़ी नम्रता से हम उसकी दया और उसके अनुग्रह को मांगते हैं। The Bible says that a humble, contrite heart God will not despise. बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीन और नम्र हृदय को, टूटे दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता है, वो उनकी सुनता है। God hears the prayers of a humble person, परमेश्वर दीन व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, especially when that humble person is desperate for God. खास करके जब वो नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत ही बेताब हो जाता है, तो उस समय परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे जवाब भी देता है। So when you pray, center your faith in God. और इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते जाएं, परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखते चले जाएं। The third thing God taught me from this prayer is that I'm to be confident in prayer. और ये प्रार्थना के बारे में जो परमेश्वर ने तीसरी बात मुझे सिखाई है वो ये है कि मुझे प्रार्थना में भरोसा रखना है। Daniel was confident of his relationship with God. दानियल परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में भरोसा रखता था। वो तो उस पर पूरा भरोसा रखे हुए था। It says he turned to the Lord, my God. और वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, यानी कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है। Daniel knew that God was his God and he was God's child. दानियल जानता था कि परमेश्वर उसका परमेश्वर है और वो परमेश्वर की संतान है। ये दानियल जानता था। And the reason was because Daniel had a covenant relationship with God. और इसका कारण यही है कि दानियल का परमेश्वर के साथ में वाचा का संबंध था। When he was a young boy growing up in Jerusalem, he had gone through the sacrifices and the ceremonies. और जब वो यरूशलेम में एक छोटा लड़का ही था, उस समय वो सारी विधियों को मानता था, पर्वों में जाता था, उसने वहां पर बलिदान भी देखे थे। As a young Jewish boy, he would have made a sacrifice like this. एक छोटे यहूदी लड़के के रूप में उसने इस तरह से वहां पर बलिदान भी चढ़ाए होंगे। उसने वहां पर अपने बचपन में बलिदान चढ़ाए होंगे। He took a little lamb to the temple. वो छोटे मेमने को भवन में लेकर गया होगा। And he grasped the lamb with both of his hands. और अपने दोनों हाथों से उसने उस मेमने को पकड़ लिया होगा। And then he confessed his sin. और उसने अपने पापों का अंगीकार किया होगा। And it was as though the sin of Daniel was transferred down his arm to the little lamb. और जैसे कि दानियल के पाप जो है वो उससे निकलकर उस मेमने में चले जाते थे, उस मेमने में वो पाप चले जाते थे। And then Daniel had to kill the lamb. और फिर दानियल जो है वो उस मेमने का वहां पर बलिदान कर देता था। And the priest took the blood of the lamb and sprinkled it on the altar to make atonement for Daniel's sin. और याजक जो है वो उस लहू को लेकर वेदी पर डालता था ताकि दानियल के पाप के लिए वो प्रायश्चित कर सके। और इस तरह से दानियल बचपन से ही पापों की क्षमा के लिए सारी विधि मानता था। And Daniel entered into a covenant relationship with God. और दानियल परमेश्वर के साथ में वाचा के संबंध में आ जाता है। हम इस बात को देख सकते हैं। In the New Testament, John the Baptist saw Jesus of Nazareth walking by. नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को वहां पर पैदल आते हुए देखा था। And he said, there goes the Lamb of God who will take away the sin of the world. और उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। So when we establish a covenant relationship with God, we don't have to go to the temple and slaughter a lamb. और जब हम परमेश्वर के साथ में वाचा के संबंध में आते हैं तो हमें किसी भवन में जाकर मेमने का बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है। We come to the cross. हम क्रूस के पास में आते हैं। And it's as though we grasp the Lamb of God with both of our hands. और हम परमेश्वर के मेमने को अपने दोनों हाथों से थाम लेते हैं। We claim the Lamb of God by faith as our own. हम विश्वास से परमेश्वर के मेमने को वो हमारा है इस तरह से दावा करते चले जाते हैं। We recognize that He died for our sin. और हम इस बात को मानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा और इस तरह से हम उस पर विश्वास करते Ask Him हैं। to forgive us and to cleanse us. और हम उससे विनती करते हैं कि वो हमें क्षमा करे, माफ करे, To cover us with the blood of Jesus. कि हमें यीशु मसीह के लहू से ढांक दे। We invite Him to come into our lives. और हम उसे अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं। And we enter into a covenant relationship with God. और हम परमेश्वर के साथ में वाचा के संबंध में आ जाते हैं। I'm not a child of God because I'm Billy Graham's daughter. मैं परमेश्वर की संतान इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बिली ग्राहम की बेटी हूँ। I'm not a child of God because I go to church. मैं परमेश्वर की संतान इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं चर्च में जाती हूँ।
I'm a child of God because I've been to the cross. मैं परमेश्वर की संतान इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्रूस के पास गई थी। I've confessed my sin. मैंने अपने पापों का अंगीकार किया है I've asked God to forgive me. और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी है And I've opened my heart and invited Jesus to live inside of me in the person of His Spirit. और मैंने अपने दिल को खोला और यीशु मसीह से विनती की है कि वो मेरे दिल में आ जाए और पवित्र आत्मा के रूप में वास करे। When you pray, do you have that same confidence जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके पास में यही भरोसा होता है that you know God is your God and you are His child because you've been to the cross? जब आप क्रूस के पास जाते हैं तभी आप जानते हैं कि परमेश्वर आपका परमेश्वर है और आप परमेश्वर की संतान हैं। Daniel prayed with confidence in his covenant relationship with God, but also in the character of God. दानियल ने अपनी वाचा के संबंध के कारण परमेश्वर से प्रार्थना की और साथ साथ में परमेश्वर के चरित्र के कारण भी उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। दानियल यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के स्वभाव को जानकर ही वो प्रभु से प्रार्थना करता है। In verse 4 he says, "O Lord, the great and awesome God." वचन 4 में कहता है, प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है। इस तरह से वो परमेश्वर से विनती करता है, Who keeps his covenant of love with all those who love him and obey his command. जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। Daniel was confident of God's faithfulness. दानियल परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में भरोसा रखता था, उसे पूरा भरोसा था। I know you know the story of Daniel from going to church and reading your Bible. मैं जानती हूँ कि आप चर्च में जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए आपको दानियल की ये कहानी अच्छे से पता है। In verse 7 he says, "Lord, you are righteous." और वचन 7 में वो कहता है कि परमेश्वर तू धर्मी है And God had sent in the enemy. और परमेश्वर शत्रु को तितर-बितर करता है। The enemy had destroyed Jerusalem. और शत्रुओं ने यरूशलेम को तो नाश कर दिया था, वो यरूशलेम को नाश कर चुके थे। The enemy had taken God's people into और captivity. शत्रु तो परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में लेकर गए थे। And Daniel said, "God, you've done the right thing." और दानियल कहता है कि परमेश्वर तूने बिल्कुल सही काम किया है, Because God never does the wrong thing. क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता है। Sometimes he does things we don't understand. कई बार वो ऐसे काम करता है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं Sometimes he allows us to hurt and to suffer. और कई बार वो हमें चोट खाने लगाता है, कई बार वो हमें दुख उठाने देता है And we don't understand. और हम उसे नहीं समझ पाते हैं। But Daniel was saying, "I may not understand, but God, I know you are righteous." लेकिन दानियल ये कह रहा था, परमेश्वर शायद मैं इस बात को न समझूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू धर्मी है। इस तरह से दानियल कहता But है। he was also just as confident in the goodness of God. लेकिन साथ साथ में वो परमेश्वर की भलाई पर पूरी तरह से अपना भरोसा रखे हुए था। In verse 9 he says, "The Lord our God is merciful and forgiving." और वचन 9 में कहता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर दयालु है और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। And we see this at the cross. और हम इसे क्रूस पर भी देखते हैं। When God poured out his judgment for our sin. जब परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए जो न्याय था, उस न्याय को उंडेल दिया था, Because God is righteous. क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। God cannot tolerate sin. परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता है There must be a blood और sacrifice. निश्चय उसके लिए लहू का बलिदान होना जरूरी था। But because God is good, he stepped in and he took the judgment that should have been ours. लेकिन परमेश्वर भला है, इसलिए वो बीच में आता है और हमारे ऊपर जो न्याय आना था खुद पर ले लेता है। So we see God's mercy and his grace. यानी हम यहाँ पर परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह को देखते हैं। हम क्रूस पर ये सब कुछ देख पाते हैं। God is good. परमेश्वर भला है And Daniel was confident in the greatness of God. और दानियल परमेश्वर की महानता के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखे हुए था। In verse 15 he refers to the deliverance from bondage in Egypt. और वचन 15 में वो मिस्र में से जो छुटकारा हुआ था, उस बंधन से, उस गुलामी से छुटकारे के बारे में कहता है। He says, "God, if you could deliver us from Pharaoh, you can deliver us from the Persian emperor." और वो ये कहता है कि परमेश्वर अगर तू हमें फिरौन के हाथ से छुड़ा सकता है तो तू हमें फारस के राज्य से, इसके साम्राज्य से छुड़ा सकता है, ऐसे दानियल ने कहा। If you set us free once, you can set us free again. अगर तूने हमें एक बार आजाद किया है तो निश्चित तो हमें फिर से आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। इस तरह दानियल परमेश्वर के सामने भरोसे के साथ कहता है। If you blessed us in the past, you can bless us at the present. अगर तूने हमें भूतकाल में आशीष दी है तो निश्चय वर्तमान में और भविष्य में भी आशीष देगा। इस तरह से दानियल भरोसा रखता है। Because God is a great God. क्योंकि परमेश्वर तो महान परमेश्वर है And his power has not been diluted over the century. और इतने सदियों में परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो घटी नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है।
God is just as powerful today as he was at creation. जैसे सृष्टि के समय परमेश्वर सामर्थी था, परमेश्वर आज भी बिल्कुल उतना ही सामर्थी है। Just as powerful as he was in Daniel's day. दानियल के दिन में जैसे सामर्थी था, बिल्कुल वैसे ही आज भी उतना ही सामर्थी है। Just as powerful as when he raised Jesus from the dead. उसने जैसे यीशु को मुर्दों में से जिलाया, आज भी वो उतना ही सामर्थी है, आज भी उतना शक्तिशाली है। Our God is a great, powerful God. हमारा परमेश्वर तो महान और सामर्थी परमेश्वर है, वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। So when you pray, how confident are you in the God to whom you are praying? और जब आप प्रार्थना करते हैं तो जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उसके बारे में कितना भरोसा रखते हैं, आप उस बात को देखिए। Daniel knew his God. दानियल अपने परमेश्वर को जानता था। He was confident because he was in a covenant relationship, and he was confident because of God's character. वो तो निश्चय भरोसा रखता था क्योंकि वो वाचा के संबंध में था और वो परमेश्वर के चरित्र के बारे में भरोसा रखता था, उसके चरित्र को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। Hebrews in the New Testament tells us we can approach God with boldness. नए नियम में इब्रानियों की पत्री हमें बताती है कि हम बड़े साहस से परमेश्वर के पास में आ सकते हैं, बड़े धीरज से उसके पास आ सकते हैं। With a confidence because of our relationship with him and because of his character. हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है और परमेश्वर का जो चरित्र है, उसके कारण हम भरोसे के साथ में परमेश्वर के पास आ सकते हैं। The fourth thing God taught me from this prayer is that I need to approach him with a contrite heart. और चौथी बात जो परमेश्वर ने इस प्रार्थना के द्वारा मुझे सिखाई है वो ये है कि मुझे टूटे दिल से परमेश्वर के सामने जाना होगा। I approach him with a confession of my own sin. मैं अपने पापों का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सामने जाऊं। मुझे अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसके सामने जाना है। All the way through this prayer, Daniel uses we and our. और इस पूरी प्रार्थना में दानियल शब्द उपयोग करता है, हम या हमारा, ऐसे शब्द वो उपयोग करता है। He's not pointing his finger at somebody else. वो किसी और की ओर अपनी उंगली नहीं उठाता है, दूसरों पर दोष नहीं देता है। He wasn't pointing his finger at the enemy. और ना ही वो अपनी उंगली शत्रु के ऊपर उठा रहा था। He wasn't pointing his finger at his culture. और ना ही वो अपनी परंपरा पर अपनी उंगली उठा रहा था। He was humbly before God, confessing the sin of his people as though it were his very own. वो निश्चय परमेश्वर के सामने नम्र था और अपने लोगों का पापों का अंगीकार ऐसे कर रहा था जैसे मानो वो उसके ही अपने पाप हो। Sometimes as Christians we can point our fingers. कई बार विश्वासी होने के नाते हम दूसरे लोगों पर अपनी उंगलियां उठाते, दोष लगाते हैं। We blame somebody else for our problems. हमारी समस्याओं के लिए हम दूसरे लोगों के ऊपर में दोष लगाते हैं। When was the last time you prayed for your nation as though the sin in this nation was your own? पिछली बार आपने कब अपने देश के लिए ऐसी प्रार्थना की जैसे कि मानो आपके देश के जो पाप है वो तो मानो आपके खुद के पाप हैं? इस तरह से आपने कब अपने देश के लिए प्रार्थना की थी? कब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने विनती करने लगे थे? I know what it's like to read the news and want to point my finger at people. मैं जानती हूँ खबरों को पढ़ना और दूसरों पर उंगली उठाना क्या होता है। But God has taught me a very personal lesson that I need to look to the sin in my own heart. और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में ये पाठ सिखाया है कि मुझे अपने खुद के दिल के जो पाप है उसे देखते चले जाना होगा। Several years ago I set aside some time to prepare messages. और कई साल पहले मैंने कुछ समय निकाला कि मैं संदेशों को तैयार कर सकूं। मैं संदेशों की तैयारी करने में कुछ समय And बिताने God लगी। whispered to my heart he didn't want to talk about the messages, he wanted to talk about me. और वहां पर परमेश्वर ने मेरे दिल से बातें की कि वो संदेशों के बारे में नहीं कहना चाहता, वो मेरे बारे में बताना चाहता है। And then he began to pinpoint sin in my life. और फिर वो मेरे जीवन में जो पाप है उसे दिखाने लग गया। Sin that I didn't know I had. और मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसे पाप हैं, मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। Every time I opened my Bible, he would point out another sin in my life. जब भी मैं बाइबल खोलती तो वो मेरे जीवन में जो पाप है उसी को दिखाते चले जाता था। Every time I prayed, another sin would come to my mind that was in my life. और जब भी मैं प्रार्थना करने लगती, परमेश्वर मेरे जीवन में जो पाप था उन पापों को याद दिलाते चले जाता था। 7 days God pointed out sin to me in my life. 7 दिनों तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो पाप थे वो सारे पाप मुझे दिखाए। Sin that I didn't know I had. ऐसे पाप जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी कि मेरे जीवन में ये पाप हैं। And so I wrote down some of the sins that he pointed out. और कुछ ऐसे पाप जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे, मैंने उन पाप की सूची लिख ली, उनकी सूची बना ली। I'm going to read some of them to you, and some of these are mine, some of these may be yours. मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगी। इनमें से कुछ पाप है जो मेरे हैं और हो सकता है कि शायद आपके जीवन में भी इसी तरह के पाप हो। He convicted me of ingratitude, उसने मुझे कृतज्ञ न होने के बारे में सहमत किया, कायल किया of not thanking him for the blessings he had already given me. कि परमेश्वर ने मुझे पहले से जो आशीषें दी है उसके लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है। He convicted me of not reading my Bible faithfully every day. उसने मुझे कायल किया कि मैं प्रतिदिन विश्वासियों की रीति से अपनी बाइबल नहीं पढ़ रही हूँ।
He convicted me of prayerlessness. प्रार्थना नहीं करने के बारे में भी परमेश्वर ने मुझे कायल कर दिया। Sometimes I would wish for something or hope for something and think that was a prayer. और कई बार मैं किसी बात के बारे में कामना करती या उसके बारे में आशा करती और यही सोचती कि वो तो मेरे लिए प्रार्थना, मैंने प्रार्थना कर ली है। He convicted me of pride, of thinking I was better than somebody else. और उसने मुझे घमंड के बारे में कायल किया और मैं ये सोचती थी कि मैं तो दूसरे लोगों से उत्तम हूँ, इस बात के बारे में कायल किया। He convicted me of a critical spirit, और दोष निकालने वाली आत्मा के बारे में परमेश्वर ने मुझे कायल किया। especially when somebody didn't measure up to what I thought they should do. खास करके जब भी मैं कभी अपेक्षा करती कि ये काम करेंगे लेकिन उसे नहीं कर पाते, उस समय। He convicted me of slander, और उसने पीठ पीछे बोलने के बारे में भी मुझे सहमत किया, इसके बारे में कायल of किया। speaking the truth about somebody but to make other people think less of them. और मैं दूसरों के बारे में सच्चाई तो बता रही थी लेकिन इस तरह से बताया कि दूसरे लोग उन्हें कम समझते जाएं, दूसरे लोगों के मन में उनके बारे में ज्यादा इज्जत ना हो। इस तरह से शब्दों में मैं उनके बारे में बताया करती थी। इस बात के लिए कायल किया। He convicted me of temper, of losing patience with other people. दूसरे लोगों पर गुस्सा करने के बारे में भी परमेश्वर ने मुझे उस समय कायल किया। He convicted me of a bad temper when I would verbally abuse somebody. जब मैं गुस्से में आ जाती तो उस समय लोगों को मैं कुछ भी बोल देती थी, उस बात के बारे में परमेश्वर ने मुझे कायल किया। And the list goes on. और इस तरह से ये सूची तो बहुत ही बड़ी है। So I want to ask you, what sin is there in your life that you need to confess to तो God? मैं आज आपसे यही कहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जिसे आपको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना होगा। Sometimes Christians think when we come to the cross and we're saved and forgiven, we don't have to come back to the cross. और कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि जब हम क्रूस के पास में आते हैं, उद्धार पाते हैं, क्षमा पाते हैं, तो उसके बाद में हमें फिर से क्रूस के पास आने की जरूरत नहीं। And we don't have to come back for forgiveness because we're already forgiven. और हमें क्षमा पाने के लिए वापस आने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो पहले से ही क्षमा मिल चुकी है। इसलिए क्रूस के पास में हम वापस आना नहीं चाहते हैं। But we come back asking for cleansing, that we might be filled with God's Spirit, that we might receive answers to our और prayer. हम शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं ताकि हम परमेश्वर के द्वारा भरते चले जाएं और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से उत्तर पाते चले जाएं। So which of these sins are in your life? तो आपके जीवन में इनमें से कौन सा पाप है? It's time for God's people to repent of sin. और ये समय है कि परमेश्वर के लोग पापों से पश्चाताप कर लें। ये समय है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने क्षमा मांग लें। That's the promise in 2 Chronicles 7:14. दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 में यही तो प्रतिज्ञा दी गई है। When God says, if my people, जब परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे लोग, those of us who are in a covenant relationship with God, हम में से ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में हैं, if my people who are called by my name would humble themselves, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं अगर वो खुद को नम्र करते हैं and it takes great humility to confess your own sin, और अपने ही पापों का अंगीकार करने के लिए बहुत बड़ी नम्रता की जरूरत होती है, बड़ी नम्रता लगती है to pray and seek God's face and turn away from your sin. कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के चेहरे को निहारें और अपने पापों से हम फिर जाए, इसके लिए बड़ी नम्रता लगती है। But God promises if you do, then He will hear your prayer, forgive your sin, and He will bless your land. परमेश्वर ये कहता है, वो प्रतिज्ञा करता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, अपने आप को नम्र करोगे और पापों से फिर जाओगे तो वो आपके देश को आशीष देगा। The key that unlocks the blessing of God is repentance of sin. और परमेश्वर की आशीष को खोलने वाली जो चाबी है वो तो बस पापों से पश्चाताप ही है। अपने पापों से हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए। A humble seeking of God in prayer. और नम्र होकर प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते चले जाना है। When you pray, do you pray with a contrite heart? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप टूटे दिल के साथ में प्रार्थना करते हैं? Confessing your sin. अपने पापों का अंगीकार करते हैं? Daniel did. दानियल ने ऐसे ही किया। The fifth thing God taught me was that Daniel was very clear about what he was asking God. पांचवी बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई वो ये है कि परमेश्वर से जो दानियल मांग रहा था उसके बारे में वो बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही सटीक था। He was asking God to restore his people to a place of blessing. वो परमेश्वर से विनती कर रहा था कि वो अपने लोगों को फिर से आशीष की जगह पर लेकर आए, उन्हें फिर से आशीष दे। But the reason Daniel wanted the people restored to a place of blessing was to bring glory to God. दानियल बस इसलिए चाहता था कि लोग परमेश्वर की आशीष में वापस आ जाए ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सके। परमेश्वर की महिमा के लिए दानियल चाहता था कि लोग आशीष पाए। He says in verse 19, "O Lord, listen. और वचन 19 में वो कहता है कि हे प्रभु सुन ले, O Lord, forgive. हे प्रभु क्षमा कर, O Lord, hear and act. और हे प्रभु सुन और तू काम कर। It's for your sake we pray." और तेरे लिए ही तो हम ये प्रार्थना करते हैं।
for the glory of your name. तेरे नाम की महिमा के लिए ही तो हम तुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। And we pray for God's blessing on this city. और हम प्रार्थना करते हैं कि इस शहर पर परमेश्वर की आशीष आ जाए। God's blessing on this state. हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीष इस राज्य पर आ जाए। And we pray for God's blessing on India. और हम प्रार्थना करते हैं कि भारत देश पर परमेश्वर की आशीष आ जाए, So that when people see that you're blessed, they will give glory to God. ताकि जब लोग देखेंगे कि आप आशीषित हैं तो वो निश्चय ही परमेश्वर को महिमा देंगे। We want God to bless us that people will see it and give glory to हम God. चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे और लोग उसे देखें और परमेश्वर को महिमा दे। And the blessing of God is not necessarily health and wealth and prosperity. और परमेश्वर की आशीष तो जरूरी नहीं कि वो केवल धन संपत्ति और संपन्नता ही हो। The blessing of God is having peace in your heart when everything around you is going wrong. परमेश्वर की आशीष तो आपके दिल में शांति है, जबकि आपके आसपास में सब कुछ गलत हो रहा है फिर भी आपके दिल में शांति होती है। यही तो परमेश्वर की आशीष है। The blessing of God is having joy in spite of the things you're going through. आप जिन सारी बातों में से होकर जा रहे हो उसके बावजूद भी आपके दिल में आनंद होता है, यही तो परमेश्वर की आशीष होती है। हम इसे ही परमेश्वर की आशीष कह सकते हैं। The blessing of God is having hope of an eternal future. परमेश्वर की आशीष तो बस यही है कि अनंत काल के भविष्य में हमारे पास में आशीष हो, आशा हो, यही तो आशीष है। The blessing of God is having the assurance your sins are forgiven. और परमेश्वर की आशीष तो ये शाश्वती है कि आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, यही तो वो आशीष है। The blessing of God is the confidence of knowing you're His child. और निश्चय परमेश्वर की आशीष तो ये है कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप इसे जानते हैं। And when people see the joy and the peace and the love in your life, they will want to know God. और जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, आनंद और प्रेम को देखेंगे तो वो भी उस परमेश्वर को स्वीकार करने की मनसा रखेंगे। When God blesses you and you let that blessing come to others, then you bring glory to God. जब आपको परमेश्वर आशीष देता है और आप उन आशीषों को दूसरों के जीवन में लेकर आते हैं तो इस तरह से आप परमेश्वर को महिमा देते चले जाते हैं। So we pray for God's blessing not just because we want something for ourselves. और हम परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं केवल इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। We pray for God's blessing not just because we want our family and our church to do well. हम केवल परमेश्वर की आशीष के लिए इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार और हमारा चर्च अच्छे से रहे। We pray for God's blessing because we want His name to be great. हम परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है वो तो बहुत ही महान हो, ऊंचा हो। We want Him to reveal Himself as the God of gods and the Lord of lords and the King of kings. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रकट करते चले जाएं और इस तरह प्रभु की महिमा होती जाए। बस इसीलिए तो हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। We want people to be drawn to Him. हम चाहते हैं कि लोग उसकी ओर खींचे चले आए, उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। Daniel was praying that God would be glorified. दानियल इस तरह से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर महिमा पाते जाएं। The sixth thing God taught me from this was that this prayer was confirmed. और निश्चय ही छठी बात जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर सिखाई वो ये है कि ये प्रार्थना साबित करने वाली प्रार्थना है। God answered Daniel's prayer. परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया। In verse 20 and 21, he said, while I was still praying, confessing my sin and seeking God. और वचन 20 और वचन 21 में वो कहता है कि जबकि मैं अपने पापों का अंगीकार कर ही रहा था, उस समय जब मैं उसका अंगीकार कर रहा था, God sent a messenger to tell Daniel his prayer was answered. परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि दानियल को ये बताए कि उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है, दे दिया गया है। In verse 23, the messenger said, Daniel, you are highly esteemed in heaven. वचन 23 में वो स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि परमेश्वर की महान कृपा तुझ पर हुई है दानियल, परमेश्वर की कृपा तुझ पर है। Listen to me. आप लोग मुझे गौर से सुनिए। Those of you who are praying for God's blessing in this city, in this state, in this nation are highly esteemed by God. जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष इस शहर में, इस राज्य में और इस देश में हो जाए, वो तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वो तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत आदर पाए व्यक्ति हैं। You have the applause of heaven. और निश्चय स्वर्ग आपके लिए ताली बजाते चले जाता है। Daniel was highly esteemed by God. और दानियल को परमेश्वर ने बहुत ही आदर दिया, सम्मान दिया था। And it was because he prayed for his people. और ये बस इसीलिए क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की थी। And verse 22 said, as he prayed, God gave him insight and understanding. और वचन 22 कहता है कि जैसे उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने उसे समझ और बुद्धि दी।
You don't have to know how to pray. As you begin to pray, you start to pray, God will show you how to pray. आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि कैसे प्रार्थना करें। जैसे आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर स्वयं आपको दिखा देता है कि किस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। You just pray. आप बस प्रार्थना कीजिए And you keep on praying. और बस आप प्रार्थना करते रहिए And you stay in your circle and you keep on praying. और आप अपने घेरे में बने रहिए और आप बस प्रार्थना करते चले जाइए। Until God answers your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ही। And Daniel said the answer came to him at the time of the evening और sacrifice. दानियल ने कहा कि उसके पास जो जवाब आया वो तो शाम के बलिदान के समय दानियल को वहां पर जवाब मिल गया। Now there had not been an evening sacrifice in Jerusalem for almost 50 years. और लगभग 50 साल से यरूशलेम में संध्या के समय कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाया जा रहा था। लगभग 50 साल से ये दशा थी। Why was Daniel aware that this answer to prayer came at the time of the evening sacrifice? दानियल इस बात के बारे में सचेत क्यों था कि उसकी प्रार्थना का उत्तर जो है वो संध्या के बलिदान के समय में आया। दानियल इस बात को अच्छे से जानता था। And I believe it's because God was giving Daniel a message. और मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर दानियल को एक संदेश दे रहा था। Because years later, Jesus Christ, the Lamb of God, was sacrificed at the time of the evening sacrifice. क्योंकि कई साल के बाद में यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वो संध्या के बलिदान के समय ही वहां पर बलिदान चढ़ाया जाएगा। And I believe God was telling Daniel the ultimate answer to your prayer is Jesus. और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर दानियल से यही कह रहा था कि तुम्हारी प्रार्थना का पूरा जवाब तो केवल यीशु मसीह है। इस तरह से परमेश्वर दानियल को बताए जा रहा था। Jesus is the source of blessing. यीशु ही आशीषों का स्रोत है, वही मुख्य स्रोत है। God can hear any prayer that he chooses. परमेश्वर जो भी प्रार्थना चुने उसका उपयोग कर सकता है। But when we come to him in Jesus' name, we're guaranteed he will hear and answer our prayer. लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम में उसके पास में आते हैं तो हमें गारंटी मिलती है कि वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। He may not answer the way we ask. शायद जिस तरीके से हम मांगते हैं उसी तरीके से परमेश्वर जवाब न दे He may not give us exactly what we ask for. और हमने जो कुछ भी मांगा शायद वही वो हमें न दे, वही वस्तु न दे, But he will hear and heaven will be moved because we ask in Jesus' name. लेकिन वो सुनेगा और स्वर्ग काम करेगा क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगा है। And then 3 years after Daniel prayed this prayer, God answered his prayer specifically. और फिर 3 साल के बाद में जब दानियल ने फिर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सटीकता से दानियल की प्रार्थना का जवाब भी दिया था। The king of Persia issued a proclamation. वहां पर फारस के राजा ने इस तरह से घोषणा की थी, उसने आज्ञा दी थी, He set all of the captives free. उसने सारे बंदियों को आजाद कर दिया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया। He said they could all go back home to Jerusalem. और उसने कहा कि वो सब यरूशलेम में अपने घर वापस जा सकते हैं। After 70 years of being in captivity, they could go home. और 70 साल तक बंधुआई में रहने के बाद वो वहां पर अपने घर को लौट सके। God had answered Daniel's prayer and God had kept his promise in Jeremiah. परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया और यिर्मयाह में उसने जो भविष्यवाणी की थी, जो प्रतिज्ञा की थी, उसको उसने पूरा भी किया। And as the people packed their bags, और जैसे लोग अपना सामान बांध रहे थे, as they walked 800 miles west back to Jerusalem, और जैसे वो 800 मील पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए यरूशलेम की ओर वापस आ रहे थे, did they know they had been prayed for? क्या उन्हें पता था कि उनके लिए प्रार्थना की गई थी? क्या वो जानते थे? I don't think they knew. मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को जानते थे। But back in the shadows was a very old man. लेकिन वहां पर पीछे परछाई में एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। वो बूढ़ा व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला था, He was dressed in sackcloth. वो तो वहां पर टाट ओढ़े हुए था He had ashes smeared on his face. और उसके चेहरे पर राख लगाई हुई थी, मली हुई थी। He was on his knees before God, और वो परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आ गया था pleading with God for his blessing. और परमेश्वर की आशीष के लिए वो परमेश्वर से विनती करते जा रहा था। And God heard Daniel's prayer. और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना। And God answered Daniel's prayer. परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया। Now, what difference does the prayer of one person make? एक व्यक्ति की प्रार्थना कितना फर्क लेकर आ सकती है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क लाती है। You will never know until you choose to pray. जब तक कि आप खुद प्रार्थना करने का चुनाव न करें, आप इस बात को कभी नहीं जान सकती हैं। And you pray. और आप प्रार्थना करते जाएं।
And you pray. और आप प्रार्थना करते चले And जाएं। you pray under compulsion because your people have problems and you're claiming God's promise. और आप विवश होकर प्रार्थना करें क्योंकि आपके लोगों को समस्या है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप प्रभु से प्रार्थना करते चले जाएं। And you pray with your faith centered in God and God alone. और आप अपने विश्वास को केवल परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करके प्रार्थना करते चले जाएं। आप प्रभु से विनती करते चले जाएं। And you pray with confidence because you know God is your God and you are His child. आप भरोसे के साथ में प्रार्थना करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर आपका परमेश्वर है और आप परमेश्वर की संतान है, ये जानते हुए प्रार्थना करें। And you pray with confession of sin. और आप पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करते चले जाएं। And you pray with clarity because you want God to be glorified. और आप स्पष्टता के साथ में प्रार्थना करते चले जाएं क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर महिमा पाते चले जाएं। And you keep on praying. और आप प्रार्थना करते चले जाएं। And you keep on praying और आप ऐसे प्रार्थना करते चले जाएं until the rains fall. जब तक कि बारिश न हो जाए। आप प्रार्थना करते चले जाएं। God pours out His blessing on this city. परमेश्वर इस शहर पर अपनी आशीष उंडेलेगा And He pours out His blessing on this state. और वो इस राज्य पर अपनी आशीष उंडेलता चला जाएगा And He pours out His blessing on this nation. और वो इस देश पर अपनी आशीष उंडेलता चला जाएगा। God's people, परमेश्वर के लोग, Christians, जो विश्वासी लोग हैं, you and me, आप और मैं, we can hold the key to God's blessing in this nation हम इस देश में परमेश्वर की आशीष के लिए चाबी थाम सकते हैं। if we pray as Daniel did. अगर हम दानियल के जैसे प्रार्थना करते चले जाए तो हम आशीष पाएंगे। So that's my challenge to you this evening. आज के दिन मैं आपको बस यही तो चुनौती देती हूँ। Would you pray as Daniel did? क्या आप दानियल के जैसे प्रार्थना करते चले जाएंगे? Pray with me, please. अभी मेरे साथ में आप प्रार्थना कीजिए। So, Father, we thank you that you are a prayer-hearing God. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू तो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। You're a prayer-answering God. तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। You're a miracle-working God. परमेश्वर, तू तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। You're a covenant-keeping तू God. वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। So we come to you now. और इसलिए अभी हम तेरे सामने आते हैं। We are your children. हम तेरी संतान हैं। We are called by your name. हमें तेरे नाम से बुलाया गया है, पुकारा गया है। We are Christians. और हम तो विश्वासी है, ख्रिस्त पर विश्वास करने वाले हैं। And we humble ourselves. और हम खुद को नम्र करते हैं। And we seek your face. और हम तेरे चेहरे को निहारते हैं। And as you reveal our sin to us, we choose to confess it and turn away from it. और जैसे प्रभु तो हमारे पापों को हम पर प्रकट करता है, हम चुनाव करते हैं कि हम उसका अंगीकार करें और उससे पीछा छुड़ा लें, उसे दूर कर दें। And you have said in your word, if we do that, you will hear our prayer. और तूने अपने वचन में कहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें अपने आशीष You will देगा, forgive our sin. हमारे पापों को क्षमा करेगा And you will bless our land. और हमारे देश को तू आशीष देगा प्रभु। So we hold you to your word. और हम तेरे वचन को अभी इस समय थाम लेते हैं। I pray your blessing on those who are here. और यहाँ पर उपस्थित लोगों पर प्रभु मैं तेरी आशीष की I प्रार्थना pray करती your हूँ। blessing on the leadership in the church. और चर्च के जो लीडरशिप है उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी आशीष इन पर रहे। Pray your blessing on the leadership of the state and the nation. और इस राज्य में, इस देश में जो अगुवे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। We pray your blessing because you're the God from whom all blessing flows. हम तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जिसके द्वारा सारी आशीषें बहती है। हम यही प्रार्थना करते You हैं। never run out of blessing. कभी तेरे पास की आशीषें खत्म नहीं होती है परमेश्वर, हमेशा तेरे पास आशीष है। We thank you for the joy that you give us तूने हमें जो आनंद दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, and the peace और शांति के लिए धन्यवाद देते हैं और पूरी बातों के लिए धन्यवाद and देते the हैं hope. और आशा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। We thank you for your blessings. Make us a blessing in this world we have. हम तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें दूसरों के लिए आशीष बना। हम यही प्रार्थना करते हैं। Pour out your blessing on us that we might be a channel of your blessing to others. प्रभु अपनी आशीष हम पर उंडेल ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। And we ask this in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen.